Everyone and welcome back to my channel. This is the Sahani vlog channel and myself Dr. Surbhi Sahani. Few days back on my Instagram story I just put one question that you can ask the queries and the questions related to the hair and care, basically the dream of getting such a long hair. So you can ask the question related to the head, hair and care. So definitely today's vlog is all about your questions with my answers regarding that. So stay tuned with watching this video till the end. Don't forget to subscribe to my channel. This is the Sahani vlog channel. Now without wasting time, let's start with the first question regarding the hair and care. First question is, when you have decided to have a long hair? See, I have decided to have a long hair when I just entered in the dental college. Like in 2013, I have decided to have a long hair. By that time, I just have a very short hairs, like till the shoulder length. मेरे उतने ही बाल थे, तो मैंने वहां जाके जब और लड़कियों के देखे कि बड़े बाल हैं, so I got the inspiration कि मुझे भी बड़े बाल रखने चाहिए. बट टिल दैट टाइम मैं बड़े बाल ज्यादा देर नहीं रख पाती थी एंड आई यूज टू कट दैट, लाइक ट्रिमिंग और कटिंग पे चली जाती थी. सो या आफ्टर 2013 आई हैव डिसाइडेड इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू डू फॉर योर लॉन्ग ग्रोथ ऑफ हेयर्स. See, I have not done anything like a first step or something. It's just by 2015 end, I got my motivation bit higher. बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. Then I decided कि I go for the long hairs and a little bit trimming of my hairs to get a healthy one. But still, मैंने उनको proper cut नहीं लिया था. So you can say from the May 2016, I have decided to have a long hair strictly. Like I was focusing more over my hair to have a proper growth, healthy growth and everything. What oils do you use to maintain such a long hair? Let's say though it's a secret for me and I don't like to share that. I use many organic things over this growth and everything. Basically not any particular item or any particular oil. The basic oils which are required for the growth. One is the mustard oil, sarson ka tel, and second one is the olive oil. So 3 days after that I do the head wash. So before that, mustard oil used to apply over the length, right? I did the massage like from the roots till the length. Mostly I do the massage of the length because I have a mixture of both. My scalp is oily and on the other hand my hair is bit dry. They are of dry nature. So I used to put more oil over the length rather than the scalp, right? So because I have a combination of such type of the skin and hair, that's why सरसों का तेल लेंथ पे लगता है. ऑयल की अगर हम बात करें, सो जैसे मैंने बताया कि मेरा स्कैल्प ऑयली है लेकिन मेरे बाल ड्राई टेंडेंसी के हैं, सो डेफिनेटली मैं ज्यादातर ऑयल लेंथ पे लगाती हूँ. हेड वॉश करके नेक्स्ट 3 डेज में जब हेड वॉश करना होता है तो सरसों का तेल लगता है इन लेंथ पे. नेक्स्ट टाइम स्विच ओवर करके कभी कभार ऑलिव ऑयल लगता है. तो मिक्सचर ऑफ बोथ नहीं लगाती है एक साथ. एक टाइम पे एक ही टाइप का ऑयल इनको मिलता है, या तो सरसों का तेल मिलेगा, मस्टर्ड ऑयल, या फिर ऑलिव ऑयल मिलेगा. सो दिस इज द सिनेरियो. और इनकी प्रॉपर मसाजिंग होती है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से मतलब नहीं खींचना होता. बहुत ही स्मूथली यू नीड टू पैम्पर इट, लाइक बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको इस पे ऑयल पुट करना होता है. सो दैट आप ज्यादा प्रेशर करेंगे, माइट भी चांस की हेयर फॉल हो सके, टीयर अप हो सके, हेयर टूट सके आपका. तो उन सब चीजों को बचाने के लिए भी हमें बड़े आराम से मसाज करनी होती है. ये नहीं कि जबरदस्ती जोर जोर से कर रहे हैं तो पता चला आधे बाल यूं ही उड़ जाएंगे, तो वो भी नहीं करना है, राइट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बालों की लेंथ कहाँ तक है एट प्रेजेंट? अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये थाइज, मिड ऑफ द थाइज तक पहुंच चुके हैं अभी, और स्टिल अभी मेरा कोई मूड नहीं है इन्हें काटने का. सो डेफिनेटली let them grow the way they are doing. So yeah, next question is how to get reduce the gray hair and the hair fall.
See, regarding the hair fall, there are lots of factors, hormonal factors, stress is another factor. I will make a separate video regarding that in detail. Followed by how to reduce your gray hairs. उसके लिए भी मुझे लगता है कि मुझे एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी विद द नुस्खास एंड एवरीथिंग एंड इवन द मेडिकली हाउ यू कैन ट्रीट दैट टू ऑल्सो. तो डेफिनेटली उसके लिए मैं आऊंगी इसी चैनल पे डिटेल वीडियो के साथ. सो तब हम इस बारे में बात करेंगे. आई हैव नोटेड डाउन इट कि मुझे इस बारे में बात करनी है. You have a red hair, sometime you have a golden hair. From last 2 years we are watching your educational channel, but we don't know what exactly your hair color is. Can you please tell? Yeah, sure, definitely. See, my exact color of my hair is black, jet black. After that I have decided to go through some color change because I want to experience कि बालों को कलर करा के कैसा लगता है. एंड डेफिनेटली उसके लिए बहुत ही गट्स चाहिए करने के लिए, क्योंकि डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल 100% होते हैं, 99% तो होते ही है. सो आई जस्ट ओनली सेक्रीफाइस अ बंच और यू कैन से इन हिंदी की सिर्फ एक लट ही मैंने दी थी कि इसे कलर करना और कुछ कलर मत करना, जैसे बाल है बिल्कुल वैसे ही रहे. तो मैंने बस एक ही लट दी थी कि बस मैं इसी को कलर करवाऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो फॉर द कॉपर कलर. वो भी बहुत अच्छा चला मेरा, लाइक मोर देन 1 ईयर चला. देन आई ट्राई द रेड कलर. डरते डरते उसमें मेरी एक लट से 2 लट हो चुकी थी ऑलरेडी. तो रेड कलर काफी अच्छा रहा. वो विद टाइम बहुत जल्दी निकलता है और उसके बाद फिर अगेन कॉपर और समथिंग मिक्सचर्स बन के आता है जो आप मेरी फोटोज वगैरह में देख सकते हैं. और लास्ट में हमें बेसिक कलर मिलता है जो कि ब्लीचिंग वाला कलर है, जो लाइट गोल्डन सा है, जो एट प्रेजेंट भी है. फैशन शेड कलर यूजुअली 1 मंथ 2 मंथ में निकल जाते हैं. मेरे केस में वो भी 6 मंथ्स में जाके पूरे निकले थे. और उसके बाद बीच में काफी कॉम्बिनेशंस ऑफ द कलर्स देखने को मिले थे रेड एंड गोल्डन का. मैंने रेड कलर 2 बार मिनिमम तो करवाया है, लेकिन डेफिनेटली जब भी आप कलर कराने जाते हैं वो थोड़ा सा आपका ओरिजिनल हेयर एड ऑन करते हैं जिससे कि रिजल्ट अच्छा है. क्योंकि प्रीवियसली एक ही बाल पे आप बार बार कलर करेंगे तो वो वाव फैक्टर और वाव कलर नहीं आएगा. एग्जैक्टली रेड जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो एग्जैक्टली रेड सेकेंड टाइम में भी नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी वो ब्लीच किया जाता है बालों को, तो उससे कलर वेरिएंट होता है. So definitely you need guts for doing all such things also. Still मैं अभी from last 1.5 year अभी कोई कलर के मूड में नहीं हूँ. I'll still do it in my future plans. जरूर है कि मैं फिर से कोई नया कलर करूंगी अपने बालों पे एंड डेफिनेटली I'll come with that. लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरा कोई सिनेरियो नहीं है, कुछ सोचा नहीं है कि कौन सा कलर हो सकता है. Can you please color your blue hair or with black or green hair with black? See, green में एक ड्रॉबैक है थोड़ा सा कि वो जब कलर निकलता है तो मैंने लोगों के केस में देखा है कि वो थोड़ा सा व्हाइट टिंच देते हैं. सो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ अ ग्रीन कलर विद द ब्लैक हेयर, राइट. ऑन द अदर हैंड ब्लू में भी ये टेंडेंसी है. सो अभी मेरे कोई प्लान्स सच नहीं है ग्रीन ब्लू या कोई भी और कलर कराने के. सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है. अभी एट प्रेजेंट कुछ मैंने ऐसा सोचा ही नहीं है. हाउ डू यू मेंटेन सच अ लॉन्ग हेयर विद द शूटिंग, पेशेंट्स, क्लिनिक, डेंटिस्ट, एजुकेशन लाइन? सी, इट्स वेरी टफ. Actually very tough for me to maintain in shoots while teaching you on YouTube or live on Zoom classes or somewhere somehow, like going to some parties, some marriage, some function. बहुत मुश्किल होता है इनको मेंटेन करना और बहुत सारी केयर करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स वरना ये इनको मेंटेन करना बिल्कुल आसान नहीं है. और जब आपके बाल नॉर्मल से थोड़े ज्यादा थिक हो तो और टफ टास्क होता है इनको मेंटेन करना, क्योंकि उसमें गर्मी भी आपको बहुत ज्यादा लग सकती है और थिक हेयर है तो मेंटेन भी करना होता है. सो इट्स लाइक दैट. केयर बहुत चाहिए होती है केयर, और बहुत टाइम लगता है केयर में. मैम आपके भी हेयर फॉल होते हैं क्या? कौन से साल के कौन से मंथ में सबसे ज्यादा हेयर फॉल होते हैं? हाँ होते हैं. मैं भी इंसान हूँ तो मेरे भी बाल ही है, कुछ और तो है नहीं. सो डेफिनेटली यार हेयर फॉल होता है, ऐसी बात नहीं है. इतनी केयर करने के बाद भी हेयर फॉल होता है क्योंकि मुझे स्ट्रेस भी होता है कभी कभार. सी आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, तो मुझे भी 10 चीजों की टेंशन हो सकती है.
सो या हेयर फॉल होता है, लेकिन सबसे गंदा सीजन अगर कोई मुझसे पूछा जाएगा कि बालों के हेयर फॉल का कौन सा है, तो वो ह्यूमिडिटी वाला जुलाई अगस्त जो रेनी सीजन होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत एक्सट्रीम होता है, उन डेज में हेयर फॉल एक्सट्रीम होता ही होता है। मेरा तो एटलीस्ट होता है, और मुझे बहुत लगता है कि यार इसको हेयर फॉल जितना कम हो उतना अच्छा है। जितनी ह्यूमिडिटी लेवल के कंपैरिजन में ये मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हेयर फॉल को कम से कम करने की, बट सी आप स्पा ले सकते हो, केयर कर सकते हो, लेकिन आप ह्यूमिडिटी लेवल को कम नहीं कर सकते। हाँ, एसी में बैठ सकते हो, बट कितनी देर बैठोगे, स्टिल वो गंदा सीजन होता ही है। ह्यूमिडिटी लेवल जहां बढ़ेगी वहां हेयर फॉल ज्यादा होगा ही होगा। सो ये तो रहता ही रहता है फॉर श्योर। Regarding my long hairs and the queries related to that, so that's all about the today's vlog, the hair and care. Definitely I come with the big solutions to your queries related to the hair and care. Definitely the chance to get a long hair just like me. So stay tuned. Don't forget to subscribe to my channel. This is the Sahani Vlog channel. Thank you for watching.